We are able to see the world because of one single thing, and that is light. If there is no light, we would not be able to see anything. So this is how crucial light is. It has been one of the most intriguing phenomena in the nature for almost 2 millenniums now. Starting all the way from Greeks till today, we are still fascinated about light and how light works. So today we are going to discuss one such a topic that is dealing with lights. The topic is refraction of light on a plane surface. It's a very interesting topic. थोड़ा सा complicated लग रहा है, but काफी simple है. Okay? It's a heavy word, refraction. Basically, it means bending of light. तो light bend कैसे होता है? When it goes from one media to another media. So friends, let us start with this topic. Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to talk about refraction of light at plane surfaces. So we are going to see how light is going to bend when it passes from one medium to another medium. This is part 1 of this series. It is taken from 10th ICSE Physics chapter 4. So without losing any time, let us go ahead. So this is what a plane surface is. When we talk about a plane surface, if you see this is a glass slab. It's a small piece of glass, and we allow the light to pass through it, and we study how light would be bending when it passes through this particular slab. So let us see what happens when light falls on this plane surface. Now, we have seen how important light is in our life. So now let us understand what light is. Light basically is electromagnetic wave. तो ये वाले चैप्टर में अपन लाइट को कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज लाइट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एनर्जी एज वी हैव डन इट इन चैप्टर 1. ये वाले चैप्टर में विल स्टिक टू ओनली वन फॉर्म ऑफ लाइट, दैट इज अ वेव. नॉट जस्ट अ वेव बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो उसमें भी ये वाले चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विजिबल लाइट ओनली, जो लाइट अपने को दिखती है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइट दैट इज विजिबल फॉर ह्यूमन आई. ओके, सो बिकॉज यही वाली लाइट है जो ग्लास दिखाया था, ग्लास का स्लैब, उसमें से रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होगी. बट बिफोर वी गो अहेड, लेट अस टॉक about the laws of reflection that we studied in the last year. So the first law was the angle of reflection is equal to the angle of incidence. And the second law was the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in one plane. If you have any doubts on this particular topic, please refer to the link that is given in the description box. इसमें पूरा वीडियो है वो 9th standard के reflection of light का. Now, what we need to know this year is that speed of light कितना होता है. वैक्यूम में कितना है तो 3 times 10 to the power of 8 meters per second. वाटर में कितना है 2.25 times 10 to the power of 8 meters per second. and ग्लास में कितना है तो 2 times 10 to the power of 8 meters per second. So as you can see, light runs pretty fast. ये सारों में अपने को क्या दिखाई दे रहा है तो we can see one thing that is there, that is the light when it goes from a rarer medium to a denser medium, it slows down. Okay, अभी ये सिर्फ rarer denser नहीं है, तो ये optically rarer और optically denser medium है. तो optically rare और optically dense और regular rare और regular dense में फर्क होता है. जैसे glass is denser than water, but on the other hand, kerosene is rarer than water. अगर उसकी डेंसिटी देखेंगे तो, बट ऑप्टिकल डेंसिटी देखेंगे तो केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और रेगुलर डेंसिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ नहीं है. डोंट मिक्स देम अप. नाउ लेट्स गो अहेड विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो फर्स्ट चीज अपने को जो ध्यान में रखना है वो है पार्शियल रिफ्लेक्शन.
तो जब भी लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो पार्ट ऑफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। जैसे ये ब्यूटीफुल माउंटेन है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ये लेक में से, या फिर ये बच्चे का फेस है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ये ग्लास में से। ओके, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो उसका एक पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट होगा वो रिफ्रैक्ट होगा। ये ध्यान में रखना है। तो रिफ्लेक्टेड का अपन ने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। अभी देखेंगे कि ये रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। तो फर्स्ट इज क्या होता है व्हेन अ लाइट रिफ्लेक्ट्स। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomena. तो ये कहाँ पर होता है? Surface पर होता है हमेशा। For instance, let us take this example. पहला वाला है light going from a denser medium to a rarer medium to a denser medium. तो ये मेरा ग्लास का सरफेस है, ये अंदर पूरा ग्लास का स्लैब होगा मेरा, जैसे वो पहले दिखाया था वीडियो में। तो यहाँ से लाइट जा रही है, इट इज दिस एंगल विच इट मेक्स विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होती है? जैसे अपने पिछले वीडियो में देखा था, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा मेजर किया जाता है विद द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये पिछली इसमें सीखा था अपन ने, दीज टू आर गोइंग टू बी इक्वल। जब ये एक पार्ट चला गया रिफ्लेक्ट होके, दूसरा पार्ट जो रिफ्रैक्ट होगा, तो दिस रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये वाला जो है, ये आर जो है ये स्मॉल रहेगा, आई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आर व्हेन वी गो फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि रेरर टू डेंसर जाएंगे तो आई का वैल्यू इज गोइंग टू बी लार्जर। सेकेंड है, अगर मैं रेरर टू डेंसर टू रेरर जाऊंगा तो पहले ग्लास से मैं जा रहा हूं एयर में, तो इसमें क्या होगा? तो एग्जैक्टली उल्टा होगा। दैट इज माई रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग टू गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर से रेरर जाऊंगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आई इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन आर। तो जब रेरर से डेंसर, डेंसर से रेरर जाऊंगा तो आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब मैं रेरर टू डेंसर जाऊंगा तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, इफ द लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल के डायरेक्शन में ही लाइट डाली अपन ने, तो क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी नो रिफ्रैक्शन। लाइट यू की तू पास हो जाएगी। That is, the angle of refraction is going to be 0 and the angle of incidence is also going to be 0. Rarer से denser करो, denser से rarer करो, फर्क नहीं पड़ेगा। So next, तो भी ये अपन ने देखा कि लाइट कैसे बेंड होगी। अभी देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इनको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और जैसे अपन के रिफ्लेक्शन के लॉज थे वैसे ये वाले भी लॉज है। द फर्स्ट लॉ टेल्स अस दैट the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. एक ही plane में होने चाहिए। And second is the ratio of the sine. हाँ, ये वही वाला साइन है, वो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था ना, वो वाला। Yeah? So sine of the incident angle I will be equal to the sine of the refraction angle, sine of angle of refraction R. And so इनका जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो the ratio of sin I to sin R is going to be constant. So mathematically I can write sin I upon sin R is equal to a constant, और वो constant को लिखा जाता है using a Greek letter mu. So it is 1 mu 2. Okay? Physicists Greek से ज़्यादा Greek के letters use करते हैं, definitely. The constant is called refractive index of the second medium with respect to the first medium, और ये लिखा जाता है 1 mu 2 ऐसे। It is generally represented by the Greek letter mu. इसको बोलेंगे mu. Now, formally refractive index can be defined as
the refractive index of second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of sine of angle of incidence in the first medium to the sine of angle of refraction in the second medium. अभी ये क्या है, तो ये एक रेशियो है. जब भी अपन किसी रेशियो के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसका कोई यूनिट नहीं होता. सो ऑब्वियसली इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा. सो refractive index has no units. Keep it in your mind. Now let us correlate refractive index to the speed of light. So अपन को पता है अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है. अपन ने पहले भी देखा था, वैक्यूम में बहुत ज़्यादा है, फिर वाटर में कम है, फिर ग्लास में उससे भी कम है. ओके, तो हाउ कैन वी रिलेट इट विथ द refractive index? Refractive index can also be written in terms of speed of light. So mu can be written as c upon v, where c is the speed of light in air and v is the speed of light in that medium. So जो अपन डायरेक्टली उनका स्पीड भी लिख सकते हैं. So mu is equal to speed of light in vacuum or air divided by speed of light in that medium. अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नंबर्स नहीं है, 1 और 2 नहीं है. सो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू वैक्यूम और एयर. एयर का थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए अपन थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा होता है. सो इट इज समथिंग लाइक 1.0001 इस टाइप का रहता है. एयर का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. सो इसलिए वो अपन एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर करते हैं एट दिस लेवल. ओके, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वुड बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रेशियो ऑफ टू द स्पीड ऑफ लाइट इन mu can be defined as the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium. So the refractive index of a transparent medium you see is always going to be greater than 1. क्यों? क्योंकि मेरा जो स्पीड है वो हमेशा, स्पीड ऑफ लाइट है वो किसी और मीडियम से हमेशा कम रहेगा. मेरा v is always going to be less than c. किसी भी मीडियम में ले लो आप, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में हमेशा सबसे ज़्यादा रहेगा. और ये इकलौती कांस्टेंट चीज़ है इन फिजिक्स विच डज नॉट चेंज. तो जब अपन टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट देखते हैं विच यूड स्टडी इन द फर्दर स्टडीज, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर लेता हूँ तो मेरा टाइम स्लो हो जाता है, पर मेरा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट ही रहता है. Now, here we have a table which gives us the speed of light. तो यहाँ पर देखेंगे एयर का, it gives me the value of mu. एयर का वैल्यू देखो तो it is 1.0003, which is almost equal to 1. That's why अपन उसको अलग से नहीं लिख रहे हैं. Then ice है, ice का कम है as compared to water, इसलिए ऊपर दोनों का काफ़ी सिमिलर है. इस वजह से we can actually mix ice in water and the ice would completely disappear when provided that it's a clear piece of ice. अगर उसमें bubbles होंगे तो दिख जाएगा. Then we have methylated spirits. Methylated spirits मतलब क्या? तो दारू बेसिकली, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है as compared to water. ईथर का और methylated spirits का सेम है. Sorry, I am extremely sorry. Methylated spirit और मिथाइल अल्कोहल जो यूज होता है स्पिरिट्स में जनरली, ये इट्स नॉट ड्रिंकेबल. आई डोंट थिंक इट इज ड्रिंकेबल. या ये अल्कोहल है, इट इज़ 1.37. केरोसिन जैसे मैंने बोला था इट इज़ 1.414. तो इसी केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, बट डेंसिटी वाइज केरोसिन इज लेस डेंस देन वाटर. देन यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड और ज़्यादा है, पैराफिन और ज़्यादा है, पैराफिन ऑयल, ग्लिसरीन. आखिरी वाले में देखो तो यहाँ पर है अपने ब्यूटीफुल डायमंड्स. तो डायमंड्स शाइन, किसी ने, बड़ी सेलिब्रिटी है, उन्होंने बोला था कि डायमंड्स, यू नीड डार्कनेस टू फॉर डायमंड्स टू शाइन. वैसा नहीं होता. डायमंड अगर डार्कनेस में रखोगे तो शाइन नहीं होंगे, उसके लिए लाइट लगेगी. सिंस डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिटरली 2.5 टाइम्स ज़्यादा है, विच मीन्स
वहाँ पर जो लाइट बेंड होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेंड होगी, और काफ़ी ज़्यादा बेंड होगी इसलिए वो अंदर ही अंदर बाउंस करेगी, और अंदर ही अंदर बाउंस करेगी तो ऑटोमेटिकली वो डायमंड शाइन होने लगेगा। तो दिस वाज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ different material that we use in our real life. Next we have speed of light in different media, relationship between refractive index and speed of light. So in general we can say that refractive index of the second, अभी ये दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले तो जो था वो एब्सोल्यूट वाला था, C यूज कर रहे थे अपन, अभी दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरे पास दो मीडिया है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो इसमें कैसे कंपेयर होगा, तो 1 mu 2 वुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अभी कुछ बुक्स में देयर इज पर्टिकुलरली आई थिंक सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड के कुछ बुक्स में देयर इज the formula has been misprinted, so please correct it. This is the correct formula, that is speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. This is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Or we can say that अभी ये कैसे लिख सकते हैं अपन, तो we can write it as V1 upon V2, दोनों को C से डिवाइड कर दिया मैंने, I can do it because C is same constant speed of light, तो अगर C से डिवाइड करूंगा और आई टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ इट, तो अगर इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो उसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, और इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो उसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। सो एंड अप विद C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1, पर मेरा C अपॉन V2 क्या है, तो इट इज इक्वल टू μ2, एंड C अपॉन V1 क्या है, तो इट इज इक्वल टू μ1। ओके, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो जब अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करते हैं तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये लिया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट हाउ द स्पीड ऑफ लाइट वुड वेरी। So this was about speed of light in two different media other than air. Now, conditions for a light to pass undeviated, दो conditions है। पहली condition क्या है, जो अपन ने पहले भी देखी थी कि incident ray जो है वो normal से ही जा रहा है, that is the angle of incidence is equal to 0, तो वो undeviated चला जाएगा। और दूसरा क्या है, if the angle of incidence is equal to the angle of refraction, then also the ray would pass undeviated. So these are the two conditions that we have, because sin A upon sin R अगर R और R सेम है तो दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, which is refractive index of air, which means that it just passed. तो ये दो क्राइटेरियाज है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, बिकॉज ये वाली चीज लगभग 6 बार आ चुकी है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्पीड, इफेक्ट ऑन स्पीड v, वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी f ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें चेंजेस क्या होंगे। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ रेरर टू अ डेंसर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, while if it goes from denser to rarer, the speed of light increases. सो रेरर टू डेंसर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, डेंसर टू रेरर जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, डेंसर टू रेरर जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी। नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन। इफ v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट in the medium, then frequency is given as f is equal to v upon lambda. तो v would be equal to f times lambda. So ये जो है ये constant ही रहेगा, ये change नहीं होगा, तो frequency change नहीं होगी, ये ध्यान देना important है। Next is when light passes from a rarer medium to a denser medium, the wavelength decreases. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो भी frequency को constant रखना है मेरे को, तो अगर मेरा velocity कम हो रहा है तो मेरा wavelength बढ़ना चाहिए लॉजिकली, सो वही हो रहा है, तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है। सो व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेरर मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट एंड हेंस द वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो डेंसर टू रेरर मीडियम है तो मेरा वेवलेंथ जो है वो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज द अदर वे अराउंड, अगर मेरा
वेलोसिटी कम हो रहा है तो मेरा लैम्डा भी कम होगा, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मेरा लैम्डा भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज्ड रहना चाहिए। तो इफ v ड्रॉप्स लैम्डा वुड ऑल्सो ड्रॉप, तभी मेरा एंड इक्विवेलेंटली ड्रॉप, तभी मेरा f सेम रहेगा। ओके, तो अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो लैम्डा भी कम होगा, और वेलोसिटी बढ़ रहा है तो लैम्डा भी बढ़ेगा। Now let's go ahead and check about factors affecting the refractive index of a medium. So first is nature of the medium. तो nature मतलब क्या, तो इधर अपन उसका रफनेस या फिर उसका स्मूथनेस नहीं देख रहे, रादर हम देख रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है? As the smaller speed of the light in the medium relative to air, higher is the refractive index of that medium. तो जितना कम स्पीड ऑफ लाइट उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंक्रीजेज, अदर देन एयर, एयर में उतना ही रहता है, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेज। तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रहा है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वॉयलेट के लिए ज़्यादा है और रेड के लिए कम है। मतलब वॉयलेट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी, वॉयलेट लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी, रेड लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी। दैट्स वाई वी सी रेनबो and the light splits in 7 colors when we pass it through a prism. तो वॉयलेट बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रही है इसलिए वो पूरी सेपरेट हो रही है, और रेड कम रिफ्रैक्ट हो रही है इसलिए वो पीछे रह रही है उसके। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बताता है कि अगर एक रे है जो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है। अगर मैं इनको रिवर्स कर दूं, तो मैं इमेज को यहाँ पे लेके जाऊँ, सॉरी मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूं, तो मेरा इमेज फॉर्म होगा ये वाले पॉइंट पे। तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर सो दैट आई कैन डिपिक्ट दिस। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, तो मेरा इमेज पॉइंट ए पी ही आएगा। ओके, इतना सिंपल सी बात है। तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके अपन उसको बोल दिया अपन उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बोल दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अभी अपन देखेंगे तो क्या होगा, 1 mu 2 would be equal to mu 2 upon mu 1, that is sin I upon sin R, that is equal to v1 upon v2। सेम वे अगर दूसरे मीडियम से पहले मीडियम का निकालना है तो 2 mu 1 would be equal to mu 1 upon mu 2, so that is sin R upon sin I, that is equal to v2 upon v1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट कि अगर उनका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो 2 mu 1 is going to be equal to 1 upon 1 mu 2, और 1 mu 2 is going to be equal to 1 upon 2 mu 1। एक्सपेरिमेंटली अभी ये वाला ग्लास स्लैब जो है वो अपन ने देखा था, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया आपको। तो एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे प्रूव करेंगे रिफ्रैक्शन को, तो अगर मैं एक लेज़र लेता हूँ और ऐसे उसके ऊपर हिट करता हूँ, तो यू सी ये थोड़ा बेंड होगा, ये जो सीधा जाना चाहिए था ऐसे वो सीधा ना जाके, सो इट इज़ नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन, रादर इट इज़ बेंडिंग अ बिट एंड देन गोइंग अगेन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक, तो ये कैसे किया जाता है ये देखेंगे। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, तो विल ड्रॉ द ग्लास स्लैब, PQRS का ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो ग्लास स्लैब को पेपर पे रखा जाएगा और फिर ये उसकी बॉर्डर ड्रॉ करूंगा, फिर ग्लास स्लैब को हटा दूंगा, देन आई विल ड्रॉ अ रे भी ड्रॉ करूंगा, और जब रे भी ड्रॉ करूंगा तो उधर 2 पिन्स लगा दूंगा, एक पिन यहाँ पे लगा दी, एक पिन यहाँ पे लगा दी। उसके बाद आई विल पुट द ग्लास प्रिज्म अगेन एंड आई विल सी the pins, these 2 pins, अभी 2 पिन लगाया क्योंकि I want a straight line। तो
और 2 पिन लगा दूंगा C और D. I'll punch in these 2 pins and I will end up with so इसकी ये मेरे को मेरा BC मिल जाएगा, रे BC. फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, OB को कनेक्ट कर दूंगा. I'll draw the normals here and I'll draw a circle. ये सर्कल क्यों निकालेंगे? Because I need to find the value of DF and GE. ये क्यों करना है? तो ये ज़रूरी है मेरा sin I और sin R के लिए. Because sin I कितना होगा? ये मेरा I generally draw a unit circle. Unit circle means what? तो उसका जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट होगा. तो अगर मेरा लेंथ 1 यूनिट कीप करूँगा मैं, तो ये जो DF है ये मेरा डायरेक्ट sin I का वैल्यू हो जाएगा. बिकॉज इट वुड बी DF sin I वुड बी इक्वल टू DF अपॉन DO. इस वजह से वो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा. तो बाय कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज मैं अलग अलग एंगल्स के लिए वो कैलकुलेट करूँगा. 40 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 80 डिग्रीज. एंगल ऑफ इंसिडेंस का लगाऊंगा ये सारे एंगल्स, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग के लिए फाइंड करूँगा. देन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई एंड साइन आर. ये कहाँ से फाइंड करेंगे? अपने पास वो टेबल्स है, उनसे ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी. और फिर वी विल वंस वी नोट दीज वैल्यूज, तो अपन डायरेक्टली साइन आई अपॉन साइन आर या फिर DF अपॉन EG फाइंड करेंगे एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू की 5 वैल्यूज आ जाएंगी, उनका एवरेज निकालेंगे. एवरेज कैसे निकालेंगे? सारों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे. एंड विल एक्सपेरिमेंटली प्रूव कि ग्लास का और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 है. अभी ये आपको फिल इन करना पड़ेगा. ये जनरली लैब कोर्स में आता है. वंस इन अ ब्लू मून ये आ सकता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पर उसके चांसेस काफ़ी कम है. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म. तो ये वाला जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म था जो अपन ने पहले देखा था, इसमें से रिफ्रैक्शन ऐसे होता है. तो जब भी ये रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो मेरा रे है AB और ये जो मेरा दूसरा रे है BC, अगर आप देखोगे, इफ आई ड्रॉ दिस रे AB AO and extend it, you see it would be parallel to BC, giving me a ray which should have gone parallel. तो आप देखोगे तो जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल ही रहेगा मेरे इंसिडेंट रे से. इसका मतलब क्या हो रहा है? बेंडिंग तो हो रही है, पर बेंडिंग सिर्फ और सिर्फ ग्लास के अंदर हो रही है. जैसे वो ग्लास के बाहर आ रहा है तो इसी दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल एंड E एंड I आर गोइंग टू बी इक्वल. तो जो मेरा इमर्जेंट रे है और मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो हमेशा पैरेलल रहेंगे. तो जब भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन होता है तो एंगल ऑफ तो जो मेरा इंसिडेंट रे है और मेरा इमर्जेंट रे है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसकी जगह पर अगर अपन दूसरा कोई भी शेप ले लेंगे, से प्रिज्म ले लेंगे, तो ये नहीं होगा. इट वोंट, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे वोंट बी पैरेलल टू ईच अदर. तो ये वाला जो चीज़ होता है इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट. मतलब क्या हुआ है? जो मेरा रे यहाँ जाना चाहिए था वो लैटरली डिस्प्लेस होके उससे पैरेलल एक जगह पर आ गया है. और ये जो YX है ये मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द मीडियम. भाई थिकनेस कितना है, जितना मोटा मीडियम उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा. दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस. मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर वुड बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो अगर अपन पीछे जाकर देखेंगे तो ये वाला जो XY जो वैल्यू है वो हमेशा ये XY मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा. तो ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो ये 2 चीज़ों पे हो गई. थर्ड चीज इज डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर वुड बी द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मेरा बेंडिंग ज़्यादा होगा. Now, multiple images on a thick plain glass plate और thick mirror. ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है. अगर आप इसको इन्फिनिटी मिरर बोलते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त दिखता है. एक पतला सा मिरर रहता है जिसमें एक LED ऐसे घुमा के लगाई जाती है एंड इट लुक्स एज इफ ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता जा रहा है.
पर इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है क्या? तो नहीं बढ़ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है? तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। और ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज देर आर टू पैरेलल मिरर्स देयर दैट आर रिफ्लेक्टिंग द लाइट। तो एक आगे वाला मिरर हो गया, एक पीछे वाला मिरर हो गया, ये दूसरा एक है। तो ये अपन वॉल पर लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी नाइस ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। जब अपन ने मल्टीपल रिफ्लेक्शंस देखे थे लास्ट ईयर व्हेन वी स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन, तो हमने देखा था कि when the mirrors are parallel to each other they are going to produce infinitely many images, जैसे ये वाले पे हो रहे हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल है, फिर ये 2 3 4 5 6 all these are my images and they keep on going on and on and on। तो ये अभी मिरर में देखा था अपन ने। तो ये अभी थिक मिरर में कैसे होता है या फिर थिक ग्लास प्लेट में कैसे होता है। तो व्हेन आई हैव अ थिक ग्लास प्लेट, तो अगर ए मेरा ऑब्जेक्ट है तो अगर वो बी पर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा पी की तरफ और एक पार्ट रिफ्रैक्ट होगा बी डैश की तरफ। तो जो पी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका इमेज जो A1 पर फाइंड हो रहा है, और ये बी डैश की वजह से एक इमेज बनेगा। तो अगर आप देखोगे ML इज पैरेलल टू NP, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेयर ऑफ mirrors that are parallel to each other. So it mimics that effect, giving us multiple images. तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप मोटा वाला मिरर देखेंगे तो उसके सामने अगर आप खड़े रहेंगे तो you'll not see a single image of yourself but a multiple images which are slightly different from or slightly distorted. तो थिक मिरर में आप खुद का इमेज देखोगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हमेशा दिखेगा। So this was about multiple images that are formed by a thick mirror. I have some important board questions. I have put them in the description box. You can go download the worksheet and solve it. These are basically, some of them are numerical and some of them are theoretical questions. There is going to be a separate video that we are going to make which would deal with solving numerical examples for this particular topic. So please stay tuned for it. In case you have any queries from the worksheet, feel free to contact us on the WhatsApp number that is given or scan the QR code. If you found this video interesting, please give it a thumbs up, share it with your friends. You liking my videos motivates me to make more videos and help you in a better manner. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.